Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q3 and 9 months FY26 earnings conference call hosted by Shakti Pumps India Limited. As a reminder, all participants' lines will be in listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. I now hand over the conference to Mr. Rohit Anand from EY. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward to the financial results and developments and to answer our questions today, we have the senior management of Shakti Pump India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidhar, Chairman, Mr. Ramesh Patidhar, Managing Director, Mr. Ramakrishna Satluri, CEO, Shakti Energy Solutions Limited, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidhar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Ramesh Patidhar, our Managing Director. I will now hand over the call to Mr. Ramesh Patidhar, sir. Over to you, sir. Thank you, Rohit. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us on a Saturday. I am pleased to welcome you to Shakti Pump's earnings call for the third quarter and 9 months ended December 31st, 2025. Let me start by saying that Q3 FY26 was a quarter of deliberate and disciplined choice for us. While our reported financial performance for the quarter was below our earlier expectations, the actions we took were intentional, prudent, and aimed at strengthening the company for the long term. During Q3, we consciously moderated execution, especially in Maharashtra, to address elevated receivables level and protect balance sheet strength. As part of this approach, we temporarily paused execution of orders of approximately 200 crores. This decision resulted in lower revenue recognition and pressure on margins on both QOQ and YOY basis. However, we want to clearly emphasize that this was a strategic decision, prioritizing cash flows and working capital discipline over short-term revenue growth. Margins during the quarter were also impacted by several factors. These included lower realizations of around 4% in Magheltala orders, a continued increase of around 2% in raw material prices such as copper, steel, and solar panels, and higher employee costs. Additionally, we consumed some inventory that was procured in Q2 FY26 when input prices were higher, which also impacted the margins. We also incurred a one-time manpower cost of rupees 4.4 crores due to the implementation of the new labor code, along with investments in emerging businesses that are still in their build-up phase. Importantly, our working capital position has started to stabilize. Even with incremental revenue recognition during the quarter, trade receivables remain broadly stable compared to Q2 FY26, reflecting improved collections and tighter execution disciplines. This gives us confidence that the corrective steps taken are already showing results. We continue to maintain a strong, diversified order book of approximately 2,100 crore rupees, with healthy representation across multiple states, including Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh, and Haryana. Payments from Maharashtra have started improving following the release of funds by the Asian Infrastructure Investment Bank and the state government. The execution in the state has now resumed. Our entry into Karnataka with our first large order marks an important expansion into the southern region. The executions there will be closely aligned with the payment timelines. Our export business remained resilient
performing well during the quarter, with the retail business reporting 25% YoY growth. Revenue from export business stood rupees 307 crores in 9 months FY26 and rupees 105 crores in Q3 FY26. We expect this segment to grow at a healthy pace for the full year, supported by the strong retail exports and expanding international opportunities. We also expect our export business to gain traction with the signing of trade agreements of India in major international markets like USA, our major export market, and also with the Europe. We also continue to see encouraging traction in emerging businesses. Case sales grew strongly during the 9-month period to rupees 66.6 crore, a YoY growth of 68%. And our solar rooftop business is steadily expanding its dealer network, positioning it to become a meaningful contributor post commissioning of our DCR module capacity of 500 megawatt in Q1 FY27. Looking ahead, we expect execution momentum to improve meaningful in Q4 26, which we anticipate to be our highest revenue quarter ever, although some revenue may spill over into subsequent quarters. We aim to reach as close to our revenue guidance given for the full year FY26. Our focus remains firmly on strengthening the balance sheet, disciplined executions, and sustainable growth. In closing, we believe the steps we have taken during the quarter place Shakti Pumps on a much stronger footing, allowing us to capture upcoming opportunities while protecting long-term value for all stakeholders. Thank you for your continued trust and support. Now I would like to request Mr. Ramakrishna Sataluri ji to share the developments and outlook for the solar rooftop business. Thank you. Thank you very much, Mr. Ramesh Patidar. We've had a very exciting set of actions in the quarter for the rooftop business. This being a new business that we are starting off, the focus isn't to look into the long term, but work on the basics at present. We spent a lot of time in building the infrastructure, the channel infrastructure for the business. We placed our products in the market to get feedback, and the feedback has been very positive. We also started a digital campaign speaking about our products, our strengths, the legacy of Shakti. That's been well received as well. And as Mr. Patidar just said, we are looking at some volumes coming in the next financial year once our module plant, the 500 megawatt module plant, also comes up. I now open the floor for questions, please. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mahesh Bendre from LIC Mutual Fund. Please proceed. Hi, good afternoon, sir. Thank you for the opportunity. Sir, this quarter was, unexpected one. So was that expected from your end, or is it that as quarter progressed, the situation become challenging in terms of execution? Yes, Mahesh. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ पेमेंट डिले होने की संभावना से पिछले क्वार्टर में हमने कुछ 200 करोड़ के ऑर्डर हमारे जो थे वो हमने रोके थे उनको, क्योंकि उनकी पेमेंट्स जो अब जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक की सैंक्शन हो चुकी है और बजट से भी उनको पैसा अब आ चुका है. पिछले क्वार्टर में पेमेंट नहीं आने की वजह से हमने थोड़ा सा पॉज किया था कि हम उसका जो मटेरियल हमारा पूरा रेडी है, ऑर्डर्स गोडाउन्स में मटेरियल रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन
हमने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए और वर्किंग कैपिटल को डिसिप्लिन में रखने के लिए ये डिसीजन हमने लिया था। ये डिसीजन यस थोड़ा कड़वा था, लेकिन हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हमने उस डिसीजन को लिया। और अब ये आगे ऑलरेडी हमको लग रहा है कि यहाँ अच्छी सिचुएशन हो चुकी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1000 करोड़ सैंक्शन किया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सैंक्शन आ गया है। तो अब इस क्वार्टर में हमको लगता है कि हम अपनी स्पीड आगे और बढ़ाएंगे और अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और भी स्पीड से आगे काम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पैसा भी आ चुका है, अभी हमारे पास ऑलरेडी पैसा आना चालू हो गया है, तो पैसा भी आना चालू हो गया है। तो अब हमको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि रूटीन में पैसा कल भी कुछ आया है और एक आध दिन में और आने वाला है और अच्छा स्थिति अब लग रहा है। उन्होंने 1 लाख पंप का टेंडर भी दूसरा बुलाया है, तो अब उनको पेमेंट भी सारे क्लियर करना पड़ेंगे। और वैसे भी मार्च एंड में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहते हैं कि सारा पेमेंट क्लियर करें वो। Okay. सर, आई मीन व्हेन वी गो इनटू दिस क्वार्टर, आपको लगता है कि जो चीजें इम्पैक्ट हुआ था इस Q3 में वो रिवर्स होंगी Q4 में? यस बिल्कुल जरूर, क्योंकि हमने खुद नहीं रोका था। अभी देखिए हमारी ऑर्डर बुक 2100 करोड़ की है, उसमें से हमने 200 करोड़ के ऑर्डर जो रोके थे, जो पाइपलाइन में वेट कर रहे थे डिस्पैच के लिए, सब कुछ रेडी था। हमने उसको इसीलिए रोका क्योंकि हम डिसिप्लिन चाह रहे थे कि एक बार पेमेंट क्लियर हो जाए इनका। तो अब वो बहुत क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बजट से पैसा आ चुका है, एशियन बैंक से सैंक्शन आ चुका है और अगला टेंडर भी वो लोग ला रहे हैं, तो उनको पेमेंट तो टाइम पे करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब डिसिप्लिन में रहेगी, ऐसी हमारी पूरी सोच भी है और हम कॉन्फिडेंट है। Okay. Sir, another thing is non-custom business and export business. कैसा रहेगा? What was the contribution from this non-custom and export business? और इसका आउटलुक क्या रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? ओके, मैं पहले एक्सपोर्ट के लिए रमेश को बोलता हूँ। रमेश उसको और अच्छे से आपको एड्रेस करेंगे। जी महेश जी, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 25% की ग्रोथ हमारे पूरे 9 मंथ में भी देखे जाएंगे, तो हम लोगों ने मेंटेन करी है और हम बिल्कुल वो मेंटेन करेंगे। और हमारे पास में अच्छे ऑर्डर्स भी है। और जो अभी जो यूएस का जो टैरिफ का जो 50% से जो 18% को है, वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है। हमारा मार्केट ऑलरेडी स्टेब्लिश है वहाँ पर, तो उसका हमको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इस पे। ओके। एंड नॉन कुसुम पंप बिजनेस? नॉन कुसुम में भी हम लोगों ने जो 68% की अभी ग्रोथ करी है, तो उसमें भी हम लोग डीलर नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं और वो ग्रोथ हम लोग और अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उसको। उसके रिजल्ट आपको अगले क्वार्टर में, मतलब Q1 में डेफिनेटली मिलेंगे उसके बाद। Okay. So last question from my end. I think we were doing two projects. One was backward integration project. आपके solar cell और solar solar cell की capacity आने वाली थी, solar module and solar cell. And secondly EV business, electric vehicle जो मोटर बनाने वाले थे। तो what is the timeline for these two businesses and इसका FY27 में क्या impact होगा? इसमें सर जो हमारा ये पंप वाला बिजनेस है जिसका एक्सपेंशन हम ला रहे हैं, तो इसमें अभी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। साइट डेवलपमेंट स्टार्टेड है और अभी उसमें बिल्डिंग का काम चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी मशीनों के ऑर्डर्स भी हुए हैं और ये अगस्त में हमको ट्रायल रन और मतलब फुल फ्लेज हम इसमें प्रोडक्शन ले पाएंगे। जो अपना मॉड्यूल का कैपेसिटी है तो उसमें 2 अपडेट है। एक हम उसमें 0.5 गीगा का कैपेसिटी ले रहे हैं, जो हम Q1 FY27 में देख रहे हैं कि वो हमको मिल जाएगा, जिससे हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। सेकंड जो सेल प्लस मॉड्यूल का कैपेसिटी जो 2.2 गीगा की अपन बात कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट की, तो उसमें जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो अप्रैल 27 तक हमको एक्सपेक्टेड है कि वो अपने फ्लोर पे आ जाएगी। तो दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बराबर आएंगे और हम और वेल बिफोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शक्ति ईवी की बात करते हैं। शक्ति ईवी में बहुत अच्छे काम हुए हैं इस क्वार्टर में, लेकिन सेल आने में अगला साल लगेगा। हमने कुछ मोटर्स डेवलप कर ली है, कुछ टेस्टिंग भी हो चुकी है और कुछ हमने ऑलरेडी पहले से ही हमारा जो कस्टमर है JBM, उनको भी और वेराइटीज बढ़ाना चालू की है अभी हमने, और उनके लिए कुछ कंट्रोलर्स भी हमने बनाए हैं जो प्रूवन भी हो चुके हैं, टेस्ट भी हो चुके हैं। तो और भी 2-4 कंपनी हैं जिसमें कि हम मोटर और कंट्रोलर दोनों अपने अप्रूव करा चुके हैं। तो अगले नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि ईवी का भी एक अच्छा सेल हम देख पाएंगे और हमारी जो SES है जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है उसका भी हम अच्छा सेल देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर में।
अभी ये दोनों कंपनियां इनिशियल स्टेज पे है और डेवलपमेंट सब में बढ़िया से एकदम अच्छे से हुए हैं। और सोलर में तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है और मोटर में ऑलरेडी हमारा 40 साल का अनुभव है, कंट्रोलर में हम 10 साल के अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको ईवी में भारत सरकार की भी हेल्प मिल रही है, क्योंकि उन्होंने भी अभी उसका डोमेस्टिक कंसेंट अब इम्प्रूव कर दिया है। तो कुछ लोग जो पहले इम्पोर्टेड मोटरें ही लगा रहे थे, अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। Sure, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू महेश। Thank you. Thank you, sir. The next question is from the line of Ashish from InvestQ PMS. Please proceed. Yes. सर ये जो रियलाइजेशन कम हुआ है महाराष्ट्र मागिलतला में, सो इसका ट्रेजेक्टरी क्या लग रहा है? मतलब ये अभी 4% कम होने से हमारे ग्रॉस मार्जिन्स भी हिट होंगे, और एबिटा मार्जिन जो पिछले साल 24% जैसा था, अभी ये क्वार्टर में तो 2-3 चीजें हैं, लेकिन सस्टेनेबल मार्जिन इसमें क्या दिखता है सर? और क्योंकि ये अगर ऐसे ही चलता रहा कंपटीशन की वजह से या जो भी फैक्टर से, अगर रियलाइजेशन कम होते रहे तो हमारे मार्जिन प्रेशर में रहेंगे हमेशा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, तो हम कैसे इसको डील करेंगे? हाँ आशीष, एक्चुअली जो आप पिछले क्वार्टर में मार्जिन वाला जो हिस्ट्री देख रहे हो ना, बेसिकली इसमें क्या है, 3 और 5 HP के पंप ज्यादा हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, मगरतला वाला ही एग्जीक्यूट ज्यादा किया है। क्योंकि जो हमारे दूसरे स्टेट है जहाँ पर हम हायर HP के पंप भी सप्लाई करते हैं और उसमें हायर मार्जिन भी है, जैसे कि आप देखें राजस्थान हो और हरियाणा हो, यूपी हो, झारखंड हो और MP हो, और अभी हमारा जो साउथ में एक स्टेट खुला है उसमें भी मार्जिन हमको जब 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 कभी हम बड़े हार्स पावर की तरफ जाते हैं तो हमारा मार्जिन बढ़ता है। हाँ, मैं ये बात आपकी मानने के लिए तैयार हूँ कि जो मगरतला में जो प्रेशर रहा, क्योंकि एक तो उनके छोटे HP की वजह से कुछ रियलाइजेशन कम होता है, दूसरा इन दिनों क्या हुआ कि रॉ मटेरियल के रेट भी कुछ ऊपर गए और उसमें डॉलर की प्राइस का हमेशा इफेक्ट रहता है। जब कभी डॉलर बढ़ता है तो हमारा रॉ मटेरियल स्टेनलेस स्टील, कॉपर, सोलर पैनल, अभी आप देखेंगे पैनल जो है वो भी थोड़ा सा DCR पैनल कम हुआ है, लेकिन बाकी चीजों में सब जगह हमको प्राइस में थोड़ी सी हिट लगी है और इसी के कारण थोड़ा मार्जिन एक आध क्वार्टर में आगे पीछे होता है। और ये बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि जब कभी डॉलर बढ़ेगा थोड़ा सा हमको उसमें दिक्कत होती है। और हम तो, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम डॉलर प्लस कंपनी है, तो डॉलर के एप्रिसिएशन का जो हमको जो फायदा मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन रॉ मटेरियल हमारा है डॉलर की वजह से आता है, इसलिए थोड़ा सा आपको मार्जिन में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो सर अभी आगे जाके मतलब आप ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन L1 प्राइसेस नीचे आने की वजह से हमारे रेट ओवरऑल कम हुआ है और मार्जिन कम हो रहा है, ये बराबर इंटरप्रिटेशन है या ये नहीं है? नहीं, थोड़ा सा करेक्शन है कि हमेशा हम मार्जिन को लेके ये तो प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखते करते हैं कि कहाँ पर काम करना और कहाँ पर नहीं करना। तो हमारे प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि हमारा 20% के आसपास, 20 से 25% के आसपास हम एक्सपोर्ट से लाने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्टेट में जहाँ पे मार्जिन ज्यादा है वहाँ पे काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम हायर हार्स पावर में जहाँ पर ज्यादा मार्जिन है वो कितना बिजनेस कंक्लूड कर पा रहे हैं, और एक्सपोर्ट में हमको अच्छा मार्जिन मिलता है, उसकी वजह से हम हमारे मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं। यस, मुझे ये कहते हुए वो बड़ा मतलब कैलकुलेटेड वे में मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, हमने महाराष्ट्र में इस बार इस क्वार्टर में लो HP का काम ज्यादा किया, इसकी वजह से हमारे मार्जिन ज्यादा हिट हुए हैं। आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा इम्प्रूव करेंगे, पूरे मार्जिन को जितनी भी हम जितने एफर्ट्स कर सकते हैं वो सब करके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट सर अंदाजा क्या लगाना चाहिए, हम लोग क्या रेट ऑफ मार्जिन पे रहेंगे नेक्स्ट ईयर? आपको तो मतलब ग्राउंड सिचुएशन और आपका बिजनेस हम लोगों से मतलब काफी ज्यादा पता है, तो एक इफ यू कैन गिव सम डायरेक्शन ऑन दैट इट विल बी ग्रेट। सेकंड इज ये वर्किंग कैपिटल मतलब जो फंसा हुआ था, तो अभी जो कलेक्शंस आए होंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो दिसंबर की बैलेंस शीट आपने दी हुई है, उसमें वर्किंग कैपिटल लोन और टर्म लोन दोनों ऊपर गया है, तो अभी क्या सिचुएशन है? वर्किंग कैपिटल रिलीज हुआ है क्या? मतलब वो दिसंबर की बैलेंस शीट से कम हुआ है, क्योंकि 1.5 महीना तो ऑलरेडी निकल गया है Q4 का। तो ये 2 चीजें और ऐड करके बताएंगे तो प्लीज हेल्प होगी। डेटर्स में जो है सर ने आपको बताया कि उसमें रियलाइजेशन आ रहा है और विजिबिलिटी भी दिख रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पैसा टाइम पे रिलीज कर रही है।
सो सच वहाँ पे कोई हमको अब प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन भी बढ़ाया, स्पीड अप किया है। तो अब हम बोल पा रहे हैं कि जो Q4 रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा, ये भी बोल रहे हैं। बट जो आप मार्जिन और ये बोल रहे हो, उसके लिए सभी पूरी टीम कोशिश कर रही है और आगे चल के हमको दिखता है कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो ये वन ऑफ है क्योंकि सेल्स मिक्स चेंज हुआ है, छोटे एचपी में इस बार काम ज़्यादा हुआ है। अगली बार में जो है वो सेल्स मिक्स चेंज होगा तो मार्जिन भी इम्प्रूव वहाँ पर होगा। तो लेकिन वर्किंग कैपिटल कितना नीचे आ सकता है? ये जो बैलेंस शीट में दिख रहा है बहुत बड़े नंबर है ये, तो थोड़ा नंबर पे बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल टोटल कितना था और अभी क्या लग रहा है Q4 के एंड तक? बिकॉज अभी आधा क्वार्टर तो निकल गया है, तो एक अंदाजा होगा अपने पास कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रीजनेबल कलेक्शन आ रहे हैं तो वो कम होना चाहिए। हाँ, वो कम होगा, बट वो मार्च तक के लिए आपको उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्च तक में वो फंड पूरा रिलीज होगा, तब जाके वो वर्किंग कैपिटल और जो डेटर्स पोजीशन आपको दिख रही है वो स्मूथन होते हुए दिखेगी। और अभी फिलहाल ऑर्डर अभी क्या है कि जैसे आपने अभी रिसेंट अनाउंसमेंट सुना होगा, 1100 करोड़ का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया है सोलर पंप को, प्लस जो 900,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है AIB ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ये दोनों फंड जो रिलीज होंगे ये होंगे अभी नेक्स्ट 15 डेज टू 1 मंथ में। तो इसके बाद में मैं इस पर कुछ ज्यादा बेटर कमेंट कर पाऊंगा। अभी हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज का, बट हाँ हमको विजिबिलिटी अब दिख रही है कि फंड की अवेलेबिलिटी वहां पर है, इसलिए हमने अपना जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा स्पीड अप कर रखा है और अभी हम फुल स्ट्रेंथ पर अपना काम कर रहे हैं। ओके, एक और सवाल अगर सर पूछ सकूं तो कुसुम 2 में क्या अपडेट है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या सुनाई दे रहा है कि कहाँ अटका हुआ है चीजें और कब अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है? मतलब उस स्टेट्स अपना अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो स्कीम अगर क्लैरिफाई हो जाए तो शायद इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा विजिबिलिटी वाइज। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कुसुम आएगी, कुसुम आना चाहिए और कुसुम आ भी रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर कुसुम नहीं आती है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा केस बिजनेस और भी स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि आज मेरे कस्टमर को पंप उसको चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि ये जो कुसुम में जो नंबर पंप हम देख रहे हैं ये तो बहुत ही कम है। कभी जैसे अभी 5 लाख और 7 लाख पंप हमारे महाराष्ट्र में लगाए हैं, उनको रिक्वायरमेंट है 40 लाख पंप की। अब 5 लाख पंप 40 लाख पंप के सामने है। 40 लाख किसान सोलर पंप लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि नंबर्स की सैंक्शन कम है। तो ये नंबर की वजह से वो ले नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा भी है उनके पास, क्वालिटी भी है हमारी, और उनके पास पैसा भी है, वो लेना भी चाहते हैं और हमारा ही पंप लेना चाहते हैं। ये बात जग जाहिर है, क्योंकि हमारा अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो 30 से 40 मिनट में हमारा 15,000 पंप का पोर्टल एक फुल हो जाता है खुलते बराबर। तो लोगों को हमारे पंप की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लोगों को उन्होंने एक वो कैरेट वाला मामला दिया हुआ है, तो वो सब्सिडी का इंतजार करते रहते हैं। और सब्सिडी का इंतजार भी इसलिए करते हैं कि पड़ोसी के पास सब्सिडी का पंप आ गया और मैं फुल पेमेंट लगा के पंप खरीद के आऊं तो मेरा जो है ना ईगो हर्ट होता है। तो वो जरा अपनी नैनो वाली स्टोरी हो जाती है गरीब लोगों की कार, तो उसकी वजह से भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा मैं ये तो गवर्नमेंट को भी पता होगा ये सब चीजें, इश्यूज की डायरेक्टली भी कर लेंगे तो भी काम मतलब करने लायक है ये, लेकिन गवर्नमेंट के इंसेंटिव की वजह से जो लोग रुके रहते हैं उसके वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट के साइड में भी पता होगा ये स्टिल, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब अपना इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा ये सब चीज? आशीष भाई, इसमें कैसा है कि आपको 2 फैक्ट जो है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो 5,000 करोड़ का जो बजट में अलोकेशन हुआ है फॉर कुसुम, एंड करीब 22,000 करोड़ का अलोकेशन हुआ है PM सूर्य घर के लिए। तो दोनों से विजिबिलिटी दिखती है, क्योंकि ये लास्ट ईयर में यही अलोकेशन 2,600 समथिंग हुआ था कुसुम के लिए और 10,000 करोड़ हुआ था फॉर PM सूर्य घर। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो बजट है उसका अलोकेशन जस्ट डबल हो गया है। रिवाइज होके ये बजट और बढ़ता है, ये आप हर बार ट्रेंड देखते आए हैं। तो PM कुसुम नहीं आएगा इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है। कुसुम 2.0 आएगा, ये पूरी तरह से सर्टेन है और इसका हम भी वेट कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ में हमको एड ऑन में हम ये बता पाएंगे कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने टेंडर्स ला रही है, तो केवल कुसुम नहीं अब स्टेट टेंडर भी अवेलेबल है। थर्ड थिंग, इसमें जैसा सर ने आपको बताया कि अगर ये मान लो टेंडर बिजनेस आगे चल के कुछ कम होता भी है तो हम उसमें और हैप्पी हैं। रीजन बिहाइंड ये कि वहाँ पे हम क्वालिटी कंपटीशन कर पाएंगे। आज की डेट में हमारी जो क्वालिटी है उससे कोई भी कॉम्पिटिटर अभी हमको मैच नहीं कर पाता है। तो हम वहाँ पे क्वालिटी कंपटीशन में अपने आप को एक एड ऑन देखते हैं, लीडरशिप में देखते हैं। तो इसलिए हमको उसका कोई वरी नहीं है।
सर बाकी स्टेट्स का कुछ बता पाएंगे कि क्या सीन है, कि वहाँ पे भी मतलब महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट्स बट मेजर वन, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र पे ही है मोस्टली सबका। तो बाकी स्टेट्स में जो नए हैं, यूपी है या बाकी जो स्टेट्स है, उसमें क्या लग रहा है कि उसमें नंबर्स बढ़ेंगे, या क्योंकि वो बहुत छोटे नंबर्स है अभी गिवन द साइज दैट इंडिया हैज, और उसमें भी प्रोसेस सेम ही होती है क्या कि फार्मर चूज करता है ऑन द पोर्टल, या फिर उसमें टेंडरिंग अलग से होती है, कुछ प्रोसेस अलग होता है? ये सभी जगह प्रोसेस वही है कि फार्मर चूज करता है, ये रेट कॉन्ट्रैक्ट मोड में होता है, मतलब डिसीजन मेकर इसमें फार्मर होता है। और सारे स्टेट में जो है आने वाले समय में हमको लग रहा है कि एक अच्छा सबको हो चुका है, सभी नंबर बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे एमपी में भी हमारे चीफ मिनिस्टर तो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस थोड़ी फंस गई है किसी चीजों में लेके, तो वो स्लो है। लेकिन बाकी जगह भी सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं और अच्छे नंबर सारे स्टेट को लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनको अगर अपने डिस्कॉम के लॉस कम करना है तो यही एग्रीकल्चर पंप को सोलराइज करने के अलावा चारा नहीं है। या तो कस्टमर खुद करे या स्टेट उसमें हेल्प करे या सेंटर करे, तभी हमारे डिस्कॉम की स्थिति सुधरेगी। इसलिए कर्नाटक मिला। ठीक है सर, मेरे और भी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता नहीं बाकी लोगों को भी शायद सवाल पूछने होंगे, तो मैं आता हूँ वापस। थैंक यू आशीष, थैंक यू आशीष। Thank you. The next question is from the line of Praveen Motwani from BOIMS. Please proceed. Yeah, hi. Thanks for the opportunity, sir. एक दो क्वेश्चन थे। सर फर्स्टली मुझे समझना है कि जो हमने मार्जिन रिपोर्ट किए हैं ये क्वार्टर में, सो सर ये कैसे देखें, इसमें वन ऑफ भी अगर हम देखें सब निकाल के, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग ये मार्जिन ट्रेजेक्ट्री कैसे देखें सर? बिकॉज हम लोग मार्जिन ट्रेजेक्ट्री हमारी 20 के ऊपर है और ये क्वार्टर 11 है, तो हम पहुंच जाएंगे कि अब अगले कमिंग क्वार्टर्स में कि 20 से ज्यादा मार्जिन कर पाएंगे, कि कैसे देखें इसको, अगर आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, जैसा अभी बताया सर ने भी बताया आपको कि अब वो जो 200 करोड़ के ऑर्डर लगभग हमने जो लास्ट टाइम पे रोके थे, वो अब हमने एग्जीक्यूशन अपना बढ़ा दिया, तो स्केल अप का भी हमको बेनिफिट मिलेगा और हम मार्जिन को मैक्सिमम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी टीम उसी में लगी हुई है। बट सर डायरेक्शनली कैसे देखें, अगर यहाँ से इम्प्रूव होगा कि ये वन टाइम मार्जिन जैसे दिखाए हैं, आगे जाके इट विल कम बैक टू 20% प्लस लेवल, और कैसे देखें वो मैं समझने का थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। प्रवीण, मैंने अभी भी बताया था कि ये जो मार्जिन आप देख रहे हो पिछले क्वार्टर में, मैं फिर से आपको बताता हूँ। पिछले क्वार्टर में मार्जिन जो था, बिकॉज ऑफ हमने सिर्फ मागरतला के बिजनेस पे ही काम किया था। महाराष्ट्र के रेट ऑलरेडी छोटे 3 HP और 5 HP के पंप्स होते हैं और इनके रेट भी कम है। जब ये मार्जिन आपको पता चलेगा प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। हमारे पास जो साउथ का ऑर्डर है वो भी अच्छे मार्जिन पे है, दूसरे 10 HP और 7.5 HP के जो प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाते हैं वो भी एक अच्छे मार्जिन के होते हैं। हाँ, अभी फिलहाल डॉलर की वजह से हमारे रॉ मटेरियल का हिट हमको हुआ है और हम आगे हमारे जो मार्जिन को मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके। एंड सर आपने जो फुल ईयर का गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर में, तो हम लोग वो अचीव कर सकेंगे या 26 में, मतलब ये क्वार्टर में, कि देयर इज सम डिले? हाँ प्रवीण, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने गाइडेंस दिया था, जो बताया था आपको, उसको पूरी कोशिश में लगे हैं, क्योंकि स्पीड से हम सब उसीलिए साउथ में भी स्टार्ट किया है काम हमने और महाराष्ट्र में भी अभी स्पीड बढ़ाई है। तो हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे, हमारे उसकी होप है हमको पूरा कि हम उस जो हमने गाइडेंस दिया था उसको हम अचीव करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश, वहां तक सर एक्शन करता हूँ, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है। सर सेकंड मुझे पूछना था सर, मार्जिन्स कैसे हैं नॉन कुसुम और कुसुम में, क्या क्या मार्जिन डिफरेंस है? कुसुम और नॉन कुसुम में मीन्स एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक की बात करेंगे आप, तो एक्सपोर्ट में हमेशा 10% मार्जिन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। ओके ओके ओके। एंड सर हम लोग ये रूफटॉप का रैंप अप कैसे देखें 27 में इनिशियली, मतलब कैसे रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी बिल्ड होगी 27 में? आपका क्या इंटरनल टारगेट्स हैं रेवेन्यू पे इन 27?
एज आई सेड, इससे अभी तक तो हम पूरे मार्केट में पूरा स्टडी कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम्स अभी हमने चालू किया है। Correct. और हमारा जो Okay. 500 मेगावाट वाला प्लांट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 ऑफ FY27 में वो चालू होगा, उससे हमारे वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो हम इसका पूरा प्लानिंग करके थिंक बाय Q1 वी विल बी क्लियर विथ व्हाट वॉल्यूम्स वी विल बी लुकिंग फॉर द ईयर। Okay, got it. So you will give us some more clarity in Q1 of 27. Yes. Okay, got it. So the last question है, if you can just help me to give some timeline on the new businesses. Sorry, I missed your initial remarks, sir. सेल की कभी कैपेसिटी आ रही है, मॉडल की कभी कैपेसिटी आ रही है, अगर आप पूरा टाइमलाइन एक बार वापस बता देंगे प्लीज। जो पंप की कैपेसिटी थी वो अब अगस्त तक हमारी फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगी और अगस्त में हम उसको स्टार्ट भी कर रहे हैं, वहां से हम फुल प्रोडक्शन ले पाएंगे। जो हमारा मॉड्यूल का कैपेसिटी है दो पार्ट है, एक 0.5 गीगा का जो मॉड्यूल कैपेसिटी है वो आ रहा है अभी अपना Q1 में FY27 में, जैसे सर ने आपको अभी बताया, और जो 2.2 गीगा का सेल का कैपेसिटी वो हमको अप्रैल 27 में एक्सपेक्टेड है। सो दैट इज द अपडेट फॉर द प्रोजेक्ट। रिमेनिंग में जैसे स्ट्रक्चर का कैपेसिटी ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, VFD का कैपेसिटी ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, तो ये प्रोजेक्ट साइड में मेरे साइड से अपडेट है। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Kamlesh Bagmar from Lotus Asset Managers. Please proceed. सर धन्यवाद। सर पहला क्वेश्चन ये था कि सर अभी जो कर्नाटक वाला ऑर्डर है वो करीबन 37-38% है अपनी टोटल ऑर्डर बुक का, और सर अभी कर्नाटका का भी स्टेट का फिनेंसेस का देखें हैं सर, उनके हाईएस्ट एवर ड्यूज पहुंच गए हैं जनवरी 2026 के अंदर। तो सर ये ऑर्डर भले ही मिल रहे हैं लेकिन सर इनके अंदर एक इनहेरेंट इशू हो गया है रिकवरी का सर। तो सर उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सर ये महाराष्ट्र वाला भी ये बहुत टाइम से इशू चल रहा था, क्योंकि हम अगर देखें दूसरी कंपनीज भी जैसे मान लीजिए DI पाइप की कंपनीज हो गई, इनमें ये इशू लगातार पिछले 1 साल से चले जा रहा था। और सर हम पिछले 2 क्वार्टर से ये कॉल पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि सर ये ड्यूज की रिकवरी का कैसे होगा, क्योंकि हमेशा कंपनी ये बोलती रही कि हमको पैसा मिल जाएगा, और इस क्वार्टर में ये रियलिटी में इस बार ये प्ले आउट हुआ है आपके अर्निंग में सर। तो सर मुझे लग रहा है थोड़ा मिसकम्युनिकेशन का एक इशू हो रहा है सर पिछले 2 क्वार्टर में। और जैसे ये अपना महाराष्ट्र वाला ऑर्डर भी अपने ये जो इस क्वार्टर में अर्निंग ना आई और मार्जिन डिप हुए, 4% रियलाइजेशन लोअर है, तो इस बार क्योंकि ये अर्निंग में इम्पैक्ट हुआ इसके कारण हम इसको इस बार बोल रहे हैं। लेकिन सर ये एक नज़र आ रहा है कि थोड़ा कम्युनिकेशन में एक इशू है। और लास्टली सर जो ये कॉपर के प्राइजेज और ये सब कुछ बढ़े हैं और वो अभी स्टेबलाइज भी हो रहे हैं उस लेवल पे, उधर से कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही है। तो ये जो अपनी ऑर्डर बुक है आज 2100 करोड़ की, इसके अंदर अगर ये करंट रॉ मटेरियल प्राइजेज कंटिन्यू रहती हैं तो हम मार्जिन का क्या लेवल देख रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अगर प्राइजेज हैं तो हम क्या मार्जिन पे ऑपरेट करेंगे। तो ये इन 2 चीज़ों पे सर थोड़ी क्लैरिटी दे पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ कमलेश, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब देने की। आपका पहला प्रश्न तो जो है कि कर्नाटक में पेमेंट को लेके इशू आ सकते हैं, ऐसी आपने ये बताया। मेरा ऐसा सोचना है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये है कि कर्नाटक के पास ऑलरेडी जो है कुछ पैसा MNRE ने एडवांस दे के रखा है, तो ये पैसा और कुछ फार्मर का पैसा जो आएगा उससे हमको अभी जो ऑर्डर मिला है इसका 25-30% पेमेंट हमको तुरंत मिलना चाहिए। और वो जो 30% के आसपास जो ऑर्डर है उसमें से हम इस क्वार्टर में शायद हो सकता है कि 40% ही सप्लाई कर पाए, 50% और रहेगा। तो इस क्वार्टर की तो हमको पेमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। कर्नाटका में जैसे जैसे पेमेंट की हमको क्लियरिटी आएगी वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये हम हर कॉल में पहले से भी कहते आए हैं, सभी लोगों को कहते आए हैं कि हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हमको पेमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अभी देखिए हमारा पूरा क्वार्टर हम पोस्ट करें क्योंकि हमको बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना था।
हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र के गोडाउनों में मटेरियल भरा रखा था, लेकिन फिर भी हमने डिस्पैच नहीं किया। वो पेमेंट अब आया, अब हमने स्टार्ट किया, अब हमने स्पीड भी बढ़ा दी। वैसे ही हम कर्नाटक में भी करेंगे। हम पेमेंट का इंतजार करेंगे, पेमेंट हमारे हाथ में फर्स्ट फेज का आएगा तो सेकंड फेज की और स्पीड हम आगे बढ़ाएंगे। और फर्स्ट फेज में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ पेमेंट में कर्नाटक में कोई चैलेंज है। तो हम कॉन्फिडेंट है। हम यस डिसिप्लिन में रहना चाहेंगे। जब कभी जिस डिपार्टमेंट में हमको पेमेंट में कुछ डिले होगा तो हम अपने आप को डिसिप्लिन में रख के ही आगे बढ़ेंगे। हम ऑर्डर के प्रेशर में या टॉप लाइन के प्रेशर में पहले भी हम हरियाणा में 500 करोड़ का एक ऑर्डर छोड़ चुके हैं और वही वैसे ही हम आगे भी करते हैं, क्योंकि हम हमारी शेयर होल्डर्स के पैसों को कहीं ऐसी जगह नहीं लगाना चाहेंगे कि जहां हम फंस जाए। और सर सेकेंडली मार्जिन पे, क्योंकि सर अगर करंट रॉ मटेरियल प्राइस कंटिन्यू रहते हैं तो हमको क्या लगता है सर, ये साल तो गुजर गया है सर, लेकिन नेक्स्ट ईयर के अंदर ये मार्जिन हम जो बोल रहे हैं वो क्या लेवल पे रहेंगे? क्योंकि सर ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में कुछ आने वाला है प्रेशर। और सेकेंडली सर हम ये रुपी का हम बोल रहे हैं, लेकिन सर रुपी के अंदर 3-4% गिरावट हुई होगी या 4 से 5%, लेकिन जो कॉपर की प्राइसेस एक साल में 30% बढ़ी है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रादर देन कि ये रुपी का एक जो गिरावट है। और सर वो स्टील के अंदर एक्चुअली भी सर अभी प्राइसेस अभी कहीं फॉर्म अप ही है, करीबन 6 से 7 हज़ार रुपया बढ़ा है पिछले 1.5 से 2 महीने में। तो सर ये सब चीज़ें देखते हुए हमको मार्जिन की क्या ट्रैजेक्टरी लग रही है? क्योंकि ये साल हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब इशू हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि सर हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम ऑर्डर पहले लेते हैं और प्राइसेस, क्योंकि हम बैक टू बैक अरेंजमेंट है नहीं हमारा रॉ मटेरियल का। बिल्कुल राइटली सेड सर, आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली कैसा है कि वही चीज़ सर भी आपको बोल रहे हैं कि प्राइस इतनी वॉलेटाइल हो रही है, डॉलर इतना वॉलेटाइल हो रहा है, तो इसमें अब एक बड़ी गाइडलाइन दे पाना पूरे साल का अभी के लिए डिफिकल्ट है। एक बार थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन और जो ग्लोबल कंडीशन है थोड़ी सी अब जब स्मूथन होती हैं और जब एक ये स्टेबलाइज होती हैं, तब हम ये मार्जिन की आपको एक बड़ी गाइडलाइन दे पाते हैं। तो इसलिए अभी हम ये बोल पाएंगे कि अभी हम सबसे बेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पे आप भी जानते हैं, जैसे आपने बताया कि कॉपर की प्राइस इस लाइन पे बढ़ चुकी है, स्टील की प्राइस बढ़ चुकी है, एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये सब इम्पैक्ट तो कर रही है अपनी जगह पे, पर मार्जिन हम इससे अच्छा कर पाएंगे। और जब एग्जीक्यूशन बढ़ता है तो स्केल अप का जो हमको बेनिफिट मिलता है वो अर्लियर क्वार्टर्स में भी हमको मिला है, वो आगे भी हमको मिलेगा। और ये जो सेल्स मिक्स जब चेंज होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो जो 10 HP, 7.5 HP और ये 5 HP के जब एग्जीक्यूशन बढ़ते हैं तो मार्जिन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, रिलाइजेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, बट हाँ ये वन ऑफ जो आया है ड्यू टू छोटा हमारा सेल्स मिक्स में छोटा जो पंप था उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा, बट आगे से हमको दिख रहा है कि वापस हम उस लाइन पे कहीं ना कहीं वापस आ पाएंगे। ओके सर, लेकिन सर मैं यही पूछ रहा था कि आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वापस पुराना जैसा हो जाए, और ये जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो आज चल रही है, क्योंकि सर हमको आपने एक क्वार्टर का तो रॉ मटेरियल ले ही रखा होगा सर, अगर वही कंटिन्यू रहे तो अपने मार्जिन किधर दिख रहे हैं वो एक सर क्लैरिटी तो एटलीस्ट हमारे पास होगी ना। हाँ अभी तो हम जो YTD लेवल पे आपको मार्जिन दिख रहे हैं वो तो अभी मेंटेन दिख रहे हैं हमको। ओके, थैंक यू और सर। उसी में जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है टीम उसके लिए पूरा एफर्ट कर रही है बेस्ट पॉसिबल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Nikunj Bhanushali from Kosh Wealth. Please proceed. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर दो तीन सवाल थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर बुक में एक गैप लग रहा था। सो लास्ट क्वार्टर आवर ऑर्डर बुक वाज एट 1300 crores एंड वी रिसीव्ड एडिशनल 1900 crores का ऑर्डर बुक। तो उसमें से एग्जीक्यूशन ये क्वार्टर का निकाल के भी आई थिंक देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 400-500 crores। यू राइटली सेड। एक्चुअली कैसा है कि एक स्लो मूविंग प्रोजेक्ट था जो अजमेर का था, कुसुम सी का। तो उसमें हमको ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने उसको ऑर्डर बुक से रिमूव किया है। आपने देखा होगा तो अजमेर का जो कुसुम सी का प्रोजेक्ट है उसके ऑर्डर्स हमने यहाँ से रिमूव किए हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो मूविंग है।
सेकेंड वन जो यूपी का ऑर्डर था, उसमें उन्होंने जो फाइनल हमको ऑर्डर दिया है वो 52 का दिया है। रिमेनिंग जो 300 करोड़ के ऑर्डर्स थे वो उन्होंने पुराने वाला जो ऑर्डर्स था उसको कैंसिल कर लिया एक तरीके से, और उसकी जगह पे नया ऑर्डर हमको 52 करोड़ का दिया। तो वहाँ पे एक करेक्शन हुआ है। तो 2 करेक्शन की वजह से आपको ऑर्डर बुक में स्लाइटली चेंज दिख रहा है, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर। ओके, तो ये जो करंट ऑर्डर बुक है अपना 2100 करोड़ का, उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है, और भी इसमें जब अगले 2 क्वार्टर में और भी एडिशन होंगे तो वो हम आपको जैसे आएंगे वैसे आपको अपडेट करते जाएंगे। राइट। और ये जो कंपोनेंट सी का है, तो इसमें देयर हैज बीन नॉट मच मूवमेंट, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि कंपोनेंट सी में सोलर पैनल्स का ही आई थिंक फीडर लेवल पे प्रोग्राम है वो, तो हाउ इज आवर इन्वॉल्वमेंट इन दैट? एंड पीएम कुसुम 2.0 में भी बोल रहे हैं कि सी कंपोनेंट सी लेवल का थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा, तो एनी न्यूज ऑन दैट सर? नहीं, अभी क्लियरिटी नहीं है कि कुसुम सी को क्या होने वाला है, लेकिन कुसुम सी जो है वो फीडर लेवल पे जो करना है उसके लिए मेजर था, और उसमें पंप भी इस बार आगे कुसुम सी में आने वाला है, और फोटोवोल्टिक सोलर पे भी बातें चल रही है। तो टोटल एक बार आ जाए तो उस पर हम आपको कुछ लाइट दे पाएंगे। ओके। एंड सर फिर लॉन्ग टर्म एक विजन कैसा रहेगा? विद 2-3 बिजनेसेस हो जाएंगे, वन इज सोलर पंप, देन सोलर का भी अलग से आ जाएगा, एंड द ईवी। सो फ्रॉम 2-3 years पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू सी द कंपनी ग्रोइंग? आई मीन एक परसेंटेज के हिसाब से आप कैसे ग्रो करना चाहेंगे, एंड व्हाट आर आवर टारगेट्स राइट नाउ, व्हाट डायरेक्शन वी आर मूविंग, एंड व्हाट एक्शंस आर वी टेकिंग राइट नाउ टू अचीव योर गोल? बिल्कुल आपने सही बोला। हमारा जो टारगेट है वो, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, कि लीडर रहने का ही है और लीडर आगे भी रहेंगे। और इसमें जैसे रामकृष्ण सर इसमें रूफटॉप में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सेम लाइन पे हम पंप में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और 28 के आसपास हम अपने आप को देखते हैं कि हम कहीं 5000 करोड़ का हमारा एक विजन लेके हम चल रहे हैं। इसी के लिए ही हमने सारी कैपेक्स प्लान की हुई है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, न्यू डाइवर्सिफिकेशन करना है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी आगे बढ़ना है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं उसी लाइन पर ही हैं। इवन रूफटॉप भी आप देखेंगे तो उसमें जो ब्रांडिंग हुई, एडवर्टाइजमेंट्स हुए हैं, जो न्यू टीम डेवलपमेंट हुए हैं, वो सारे उसी लाइन पे ही हमने आगे बढ़ाए हैं। तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम वो अचीव करेंगे, और आगे भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अपडेट देते रहेंगे। राइट। एक्सपोर्ट का भी अर्लियर वी हैड गाइडेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर कि भाई अप्रोक्सीमेटली वी वांट टू क्रॉस 500 crores दिस ईयर। So what are we expecting exports to be in this year and next year? तो एक्चुअली ऐसा रमेश जी ने आपको बताया ऑलरेडी कि उनका जो रिटेल मार्केट है वो तो ऑलरेडी ग्रो कर ही रहा है 20-25% से, और आगे भी इसी लाइन पे ग्रो कर रहा है। आप देखोगे हिस्टोरिकल ट्रेंड सेम है, और अभी भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी एक्सपांड कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट है वो जरूर थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो जैसे युगांडा प्रोजेक्ट में हमने अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, इसकी वजह से हमको आगे की कुछ कंट्रीज में और अच्छे ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो ये जब ऑर्डर्स आते हैं तो ये एक्सपोर्ट, आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जो है वो और बड़ा हुआ दिखेगा। बट हाँ, जो रिटेल एक्सपोर्ट है वो तो ऑलवेज 25% से एवरी ईयर ग्रो करेगा। ओके, ठीक है। That's it from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Keval Gala from Naukar Investments. Please proceed. Sir, thank you for the opportunity. So मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे कि अपने को जनवरी एंड दिसंबर और जैन में बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले, न्यू स्टेट भी, कर्नाटका में भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तो ऐसे सर और कौन से स्टेट है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट क्वार्टर्स में कि वहाँ से अच्छे ऑर्डर आने की आशंका है अपने को, वो पूछना था मुझे। सभी स्टेट में अच्छा काम होगा। जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे हम सबसे पहले 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेंगे आपको एक्सटॉक एक्सचेंज के थ्रू, है ना। जो भी स्टेट के ऑर्डर आते हैं तुरंत हम आपको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। सारे स्टेट अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, सबने अपने अपने बजट पे प्लान किया है। तो और हम अपने एक्सपोर्ट में भी अच्छा कर रहे हैं और कैश सेल में भी अच्छा कर रहे हैं।
और आगे भी जैसे कोई बड़े ऑर्डर आएंगे हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। कमलेश। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने दिसंबर क्वार्टर में ऑर्डर कुछ पॉज किए, एग्जीक्यूशन अपना पॉज किया, तो ये ऑनगोइंग क्वार्टर 4 में भी कुछ इनिशियली अपन ने पॉज किया कि अभी वो कंटिन्यूटी में आ गया है सर पूरा? नहीं, जैसा आपको मैंने सर ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हम लोग वेट कर रहे थे विजिबिलिटी का कि इनका जो पेमेंट फंड एलोकेशन है वो प्रॉपर होता है कि नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फंड एलोकेशन का आपको जैसे अभी अपडेट है कि ऑलरेडी 1100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग सपोर्ट दिया है और करीब 1000 करोड़ का AIIB का फंड आ रहा है। तो इस तरह से उनको प्रॉपर फंडिंग सपोर्ट मिल चुका है, तो हमने अपना एग्जीक्यूशन लेवल वहीं से स्टार्ट कर दिया है, तो रैंप अप है और अब बहुत स्पीड अप है। और सर एक बात, अभी जो जैसे कॉन कॉल में दूसरे सर ने कुछ किसने क्वेश्चन पूछा था कि जब भी हमको लगेगा कि वर्किंग कैपिटल कहीं पे फंस रहा है या जो हो रहा है, तो हम लोग अपना टॉप लाइन को इतना नहीं देखेंगे और हम लोग अपना एग्जीक्यूशन पॉज कर देंगे। तो सर ऐसा नहीं होगा कि दूसरे भी जो पीयर्स कॉम्पिटिटर है अपने, जैसे जीके हो गया, ओसवाल हो गया, उनको एक एज मिल जाएगा वो चीज में, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड अपना काम है तो उसमें थोड़ा डिले तो बहुत ऑब्वियस है, होने ही वाला है ये चीज। नहीं, ऐसे एक्चुअली कैसा है सर, आपको दोनों जगह पे बैलेंस रखना पड़ता है। आपको अपनी बैलेंस शीट को भी स्ट्रेंथ रखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है, तो दोनों साइड में आपको बैलेंस रखना पड़ता है। कंपटीशन अपनी जगह पे वो ऑलवेज रहेगा, आज नहीं कल भी रहेगा और कल भी था, तो वो उसके लिए आपको कोई वरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आपको हमेशा दो चीज़ों की जो शक्ति पंप ने हमेशा बात की है वो है, एक प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और दूसरा अपने रिसीवेबल को टाइम पे मिलेगा कि नहीं इसकी विजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो विजिबिलिटी जब तक चेक नहीं होगी, जब तक वो कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजंस आपको मिलेंगे। सेम प्रॉफिटेबिलिटी का भी जो लास्ट टाइम पे एक बार डिसीजन हुआ था कि उस रॉ मटेरियल की प्राइस जो एक्सेप्शनल हाई हुई थी इन्फ्लेशन की वजह से, तो उस वजह से उस टाइम पे हमने कुछ ऑर्डर्स को लेफ्ट किया था हरियाणा में। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एक आध क्वार्टर में कभी आता है पूरे हिस्ट्री में, बाकी कोई ऐसा हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड नहीं है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि अभी समझो लास्ट 2 कॉन कॉल से या मैनेजमेंट का गाइडेंस जो आप एकदम रीअफर्म भी कर रहे हो कि नहीं मैनेजमेंट अपना ये गाइडेंस अचीव कर लेगा, मोटा मोटी कर लेगा, तो सर ये हम लोग इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि ये क्वार्टर में इतना ह्यूज जो रेवेन्यू अपने को करना है वो क्या पॉसिबल है सर? हम अपना पूरा बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि उसके क्लोज कहीं ना कहीं अपने आप को कर पाए और पूरी टीम उसी में एफर्ट कर रही है। एक बार क्वार्टर के नंबर्स आने देते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Darshil Zaveri from Crown Capital. Please proceed. हेलो, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो गए हैं, ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं। तो सर एक मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जैसे आप बोल रहे हो कि अपना ऑर्डर बुक नियरली 2 क्वार्टर के लिए अपन का इनफ है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 1000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, बिकॉज दैट इज मतलब दैट्स like nearly double of what we've done in last quarter and मतलब कंपनीज हाईएस्ट एवर आप बोल रहे हो, बट हाईएस्ट एवर भी मतलब काफी बड़ा जंप है। तो अपने पास कैपेबिलिटी है ये करने का सर कि अपनी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है कुछ, that we'll be able to maintain, like we'll be able to do 1000 करोड़ रेवेन्यू सर? सर इसमें ये जो 1000 करोड़ का आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपकी जगह पे आप अपना बेटर कैलकुलेट कर रहे हो, पर मेरा ये कहना था कि हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूशन और सफिशिएंट कैपेसिटी है फॉर सप्लाई ऑफ द पंप एंड अदर प्रोडक्ट्स। सो उसको हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हम 1000 करोड़ की कोई टॉप लाइन करने वाले हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट अवेलेबल है, टीम पूरा उसी के लिए काम कर रही है और हम अपना सबसे बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम हम उसको मैच कर पाए उतना हम कर पाए, क्योंकि अभी हम 60% कैपेसिटी पे ही है, तो 40% कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने पहले भी जो एग्जीक्यूशन किया उस लाइन पे हम अपना देख पा रहे हैं कि हम अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। अच्छा, ओके सर, समझा मैं। बिकॉज अपन 20% ग्रोथ भी समझे लास्ट ईयर से, तो एटलीस्ट अपने को 800-900 करोड़ प्लस करना पड़ेगा, इसके लिए मैं पूछ रहा था। तो
मतलब अपना आधा क्वार्टर चले गया है तो अपने को कॉन्फिडेंस लेवल है कि मतलब विल बी नियर बाय, मैं नहीं पूछ रहा आप एग्जैक्ट नंबर दीजिए, बट एटलीस्ट हम लोग नियर हो गए, राइट? अपना वो अजम्पशन कर सकते हैं, करेक्ट सर? उसी के लिए मैं बोला कि एक बार क्वार्टर के नंबर्स हमको देने दीजिए, हम आपको बताएंगे हमारे अच्छे नंबर्स की हमको लग रही है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो नंबर जब अच्छे आएंगे तो हम आपको बताएंगे भी ना। ओके ओके, फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। एंड सर मेरे को वही पूछना था कि जैसे अभी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एंड आप भी बोल रहे हो कि जितना कुसुम के सिवाय भी लॉट मोर डिमांड, सो ओवर द नेक्स्ट 2-3 years सर अपन क्या मतलब अजम्पशन कर सकते हैं? सिर्फ अपना पंप डिवीजन से, ईवी तो बाद में आएगा, तो उसके लिए सिर्फ अपना जो करंट बिजनेस है उसका हम लोग क्या ग्रोथ रेट देख सकते हैं सर? इट विल बी 25% प्लस, बिकॉज एक्सपोर्ट भी अभी हम लोग के लिए बहुत खुल गया है, तो उसके लिए आपका पूछना था सर। रिटेल बिजनेस आप सर देखेंगे तो दोनों बिजनेस मेरे, भले वो एक्सपोर्ट हो या रिटेल बिजनेस अपना डोमेस्टिक वाला हो, दोनों 25% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और वो सेम ट्रेजेक्टरी हमको दिखती है, हम आगे भी मेंटेन कर जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पे ही काम कर पा रहे हैं। ओके ओके ओके, फेयर इनफ सर। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे एंड से सर, ये इंटरेस्ट कॉस्ट अपना थोड़ा इन Q3 बढ़ा हुआ है, अज्यूम वर्किंग कैपिटल की वजह से बढ़ा हुआ है, बट क्या ये हमारा नया नॉर्मल रहेगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट अपना नियरली आई थिंक 18 करोड़ जैसा था, आई थिंक सो, तो अपना क्या आप इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा एलिवेटेड ही रहेगा बिकॉज वर्किंग कैपिटल थोड़ा एक्सटेंडेड हो रहा है अपना इसके लिए? नहीं सर, हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड ऐसा रहा है कि मार्च में हमको फंड मोस्टली रिलीज हो जाता है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल का जो यूटिलाइजेशन है वो भी डाउन होता है। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट का जो आपने बात करा तो वो अभी 18 करोड़ जो है वो वापस उस लाइन पे आएगा, बट आगे चल के थोड़ा सा फिर प्लस होगा। रीजन बिहाइंड ये है कि जो हमको नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं तो उसके लिए हमने कुछ तो आप लोगों से फंड लिया हुआ है, और कुछ फंड जो है हमको बैंक से लेके और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे टर्म लोन्स हम कुछ प्लान कर रहे हैं जो, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट फंड उसमें फाइनेंस कॉस्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो सोलर का प्लांट लगाना है 1200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें करीब 400-500 करोड़ के आसपास तो मिनिमम डेट हम प्लान करके चल ही रहे हैं। ओके ओके, और सर ये सोलर प्लांट कब तक पूरा खड़ा हो जाएगा सर? ये अप्रैल 27 में देख पा रहे हैं सर हम इसको, अभी की जो एक्सपेक्टेशन हमको दिख रही है और जो अभी हमने लाइन अप की है सारी टीम को उसके अकॉर्डिंग। ओके, बिकॉज सर मेरे को ये से सोलर प्लांट के लिए आपको पूछना था, इंडस्ट्री में थोड़ा अभी नेगेटिविटी है कि सब लोग को डर है ओवर सप्लाई का, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये अभी ओवर सप्लाई का सिचुएशन है इसके अंदर कि कैसा है सर? पर्टिकुलरली अगर मैं डीसीआर के लिए बात करूं तो मुझे कोई ओवर सप्लाई अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेट में वैसा कुछ करेक्शन दिखता नहीं है। सेकंड जो है, मैं अपने प्लांट के लिए बात करूं तो वो ये है कि सर हमारे पास खुद का इन हाउस डिमांड है, तो इन हाउस जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमें सोलर पंप और सोलर रूफटॉप के लिए चाहिए, वो डिमांड के लिए हमारे पास ये सफिशिएंट कैपेसिटी है आगे के एक्सपांशन और जो आगे के ग्रोथ दिख रही है उसके हिसाब से, और ये हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। रीजन बिहाइंड ये है कि हमको एक टाइमलाइन में कुछ बड़े ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, तो उस टाइम हम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम चाहेंगे। ओके ओके, फेयर इनफ सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Praveen Motwani from BOIM. Please proceed. Yes, Praveen. Mr. Praveen, are you there on the line? Yes, I'm audible now? Yes, sir, you're audible now. Yeah, hi. Hi. Thanks for the opportunity, sir, again. सर एक चीज समझनी थी आपसे, ये आपको ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन कैसे दिख रहा है सर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स या इमीडिएटली, जहाँ पे लग रहा है कि ऑर्डर पॉसिबिलिटी है कौन से स्टेट में? और सेकंड इज सर, कुसुम 2 पे आपका क्या व्यू है? वुड इट बी बेटर देन द कुसुम 1? बस सर ये दो क्वेश्चन थे फ्रॉम माय एंड। हाँ, तो इसमें दोनों को अपन सेपरेटली लेते हैं। जैसे आपने कुसुम के लिए बात किया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें बजट एलोकेशन हमको बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो हमको लगता है कि अच्छे स्केल पे एक आना चाहिए फिर से। और सेकंड जो आपने बोला अदर स्टेट्स में कहाँ कहाँ पे अभी ऑर्डर्स दिखते हैं, तो अदर स्टेट्स में अभी हमको, जैसे सर ने आपको ऑलरेडी बताया, महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी एक टेंडर आ ही चुका है और अदर स्टेट्स भी प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स सी, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको हम अपडेट करते जाएंगे।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Gaurav Shukla from Fin Investors. Please proceed. सर एम आई ऑडिबल? यस यस सर मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन तो पूछ लिए गए हैं। मुझे बस एक चीज, आप कुसुम 2 को कब तक आता देख रहे हैं? मतलब आपका क्या अपेक्षा है कि कब तक आएगा? और एक और क्वेश्चन, अभी प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि जो सोलर प्लांट आपने बोला FY 27 में, अप्रैल 27 में रेडी हो जाएगा, तो ये एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपके लिए काम करेगा? तो मार्जिन एक्सपेंशन रहेगा उसमें, वो चीज? हाँ बिल्कुल, मार्जिन के लिए ही किया है, जो किया है वो इसीलिए किया है, इतना इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए किया है। 3% मार्जिन बढ़ेगा हमारे टोटल उसमें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम टाइमली अपना सप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उससे हमारा एक्सपोर्ट भी खुलेगा। हमको आज एक्सपोर्ट में हमारा कस्टमर हमारे पंप के साथ में, हम जो सोलर पंप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वो पैनल हमारा लेना चाहता है, लेकिन हमको ज़्यादा प्राइस भी देना चाहता है, लेकिन हमारे पास सोलर पैनल है नहीं, इसलिए हम वो उसको हम पूरा नहीं देते। उसको हमारा कस्टमर नहीं चाहते हुए भी दूसरे लोगों से पैनल खरीदने के लिए आगे जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कुसुम की बात की। कुसुम, यस, कुसुम आएगा, कुसुम आने की पूरी संभावना है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अब देखते हैं, जैसे ही कुसुम आएगा इन्फॉर्मेशन हम स्टॉक शेयर पे सबसे पहले देंगे। और इसमें जो हमारा प्लांट आ रहा है ना सर, उसमें हमको एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ा सा हमको रिलीज होते हुए दिख रही है। रीजन बिहाइंड ये है कि अभी हमको पूरी पैनल के लिए LC बेक्ड करना पड़ती है, डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, उनको रॉ मटेरियल ला के देना पड़ता है। तो ये सारा जो वर्किंग कैपिटल हमारा वहाँ पे फ्रीज होता है वो रिलीज हो जाएगा और ये हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट करेगा। तो हमको दिखता है कि अभी जो हमारा इस सोलर पैनल के लिए जो वर्किंग कैपिटल अभी प्लग अप है वो लगभग 50% रिलीज हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको केवल सेल के लिए ही, हमको वेफर्स के लिए ही ओनली LC वगैरह की रिक्वायरमेंट आएगी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, that was the last question for today. I now hand over the conference to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. Over to you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। सारे दोस्तों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.